Traffic point of view, yes. So if you want to work, if you want to, if you want to be in the traffic and transportation department, if you want to be a traffic engineer, if you want to be a transportation engineer, similar kind of the skills you require, but the additional thing that you required, if you want to deal with the traffic, you need to understand the mindset of the people. ઠીક છે, તમારે શું સમજવું પડે કે તમે જ્યારે સર્વે કરતા હોય ત્યારે તમને એમ કે ભાઈ હું તો બસમાં આવીશ, તમે જો અહીંયા બસ ફેસિલિટી આપશો, હું તો બસમાં આવીશ, પછી આવે કે ના આવે એનું પ્રિડિક્શન જે છે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડીલ વિથ ધ ટ્રાફિક એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયર. સો આઈ એમ કનેક્ટિંગ ઈચ એન્ડ એવરી ફેઝ વિથ ધ રિયલ વર્લ્ડ, રાઈટ. આપણે ગર્લ્સમાંથી પૂછીએ કોઈને, જૈનબ, what phase you are going to work Yes, on? sir. What do you like about all these phases? Sir, sir, construction of roads. Construction of the road. Okay, so Hmm. you should have a sound knowledge of the strength point of view. Okay, a load Yes. coming from the upward direction, and you need to resist that load. So basically it required the skills of the structure analysis or MOS, mechanics of solid. Okay, nothing else. So if you are good at the most subject, you are definitely you can deal with the design point of view and construction point of view. Okay, Kusi. Yes, sir. Yes, what is your opinion? Sir, I would like to go for highway design and geometrics. Okay, so if you want to design something, you must have a clear cut idea about what your plans are, right? Yes, sir. आपका प्लान क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है. Yes, sir. So further, so why I am asking all these kind of questions, because you should have to narrow down your things, right? आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपके गोल्स जो है, ठीक है, आपका कैरियर ऑप्शन जो है वो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा. तभी जो है आप 6 सेमेस्टर में आओगे तब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है, कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे क्या पसंद है, और जो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे मुझे जो पसंद है उसमें आप काम करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है. आपको प्लानिंग पसंद है और आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में एग्जीक्यूशन में चले गए, ठीक है, तो इट विल नॉट वर्क. आपको सैलरी मिलेगी लेकिन आपको जो अंदर से जो है ना वो फीलिंग और आपको जो जॉय ऑफ वर्किंग, राइट, काम करने का जो मजा है वो नहीं आएगा. तो इसीलिए आपको अभी अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है. अगर आपको आर्ट पसंद है तो आप उस लेवल की थिंकिंग को इसमें जोड़ दीजिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है. सो यू जस्ट join your hobbies into the civil engineer because you are in the field of civil engineering, right? So now I'm sharing a screen with you. You can see on your screen, right? And okay, so we have understand the scope of the highway engineering, right? So I'm briefly scrolling the screen so you will get the idea. So now let us start our you can say this next point. You can see what do you see, what is your observation from this image? Anybody, what is your observation of from this image? Am I audible to you? एकदम straight જાય છે. Okay, So vertical जाइए पर alignment. सर वर्टिकल है सर. just one by one. Who want to answer? Just Anand. Yes. સર ઓકે, રોડ તો સ્ટ્રેટ છે પર એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે સર ઈ વર્ટિકલ છે. Okay. चौधरी, दीपक कुमार चौधरी. Sir, सर vertical alignment है. दीपक हेलो। कुमार चौधरी, ये सर आपको क्या इसमें ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? जो सर रोड है ना सर, हम्म.
हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो सर इसका हाइट है उस वर्टिकल अरेंजमेंट में किया गया है सर। संतोष? यस सर। आप बताइए, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर ये जो रोड है ये कर्व है सर, वो तो कहीं पे हॉरिजॉन्टल था और कहीं पे कर्व है। Okay, so if you closely observe this image, what do you mean by alignment? Okay, so in the field of automobile engineering, you will find an alignment also, because when you go to the car garage, okay, there is a alignment, right? So alignment is nothing but it is a connecting line, right, of two wheels, you can say, let us say likewise. वो आपके व्हील्स को, ऑटोमोबाइल फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कहीं आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ है या फिर मिसबैलेंस हुआ है, तो उसका अलाइनमेंट का जो लाइन है वो मिसप्लेस हो जाएगा, तो उसको आपको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऑटोमोबाइल की बात हुई। तो कार में अलाइनमेंट होता है दो दो जो व्हील्स है उसको जोड़ने वाली लाइन, ठीक है? ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है? बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अगर ये मान लीजिए इस तरह का अलाइनमेंट हो गया व्हील का, तो जो है प्रॉपर जो है कॉन्टेक्ट होगा नहीं रोड सरफेस से, ठीक है? ये है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं, थीटा समथिंग एंगल इज देयर. So similarly, when we talk about highway alignment, so basically it is, alignment is nothing but, you should have to write down in your class note, it is the center line of a highway, right? So when you closely observe this image, you can see here a person standing at the triangle, okay, a person standing at a circle, and the person standing at a star, you can say, right? So these are into the straight line, you can say, right, in a horizontal plane. So that's why it is, there are two types of the alignments, you can say. So first is a horizontal alignment. That means is nothing but when you are surveying on a horizontal plane and you are dealing with the center line of a highway, that is called the horizontal alignment. Another word is level point of view, vertical alignment. You can see the triangular portion is slightly above than the circular portion because it has a valley. You can say valley like structure, right? આમ નીચે ઢાળ જાય છે, દેખાય છે? If you want to move from the triangular to the star, you have to move like this, right? આપણે એને ઢાળ કહીએ, right? और जो है नीचे की तरह जो है झुकता जा रहा है, और स्लोप हम कह सकते हैं इसको. So these are the two types of the alignments, right? और बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ये आपको लिखना है. वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आप प्लान में देखते हैं, प्लान में, ठीक है? तो प्लान में क्या होता है कि आपको मान लीजिए राजकोट से निकल के, ठीक है, मान लीजिए अहमदाबाद जाना है, तो उसके बीच में इस टाइप के कुछ कर्वेचर आएंगे, ठीक है, लाइकवाइज, ठीक है? तो ये क्या हुआ, आपका अलाइनमेंट हुआ, ठीक है? लेकिन ये जो कर्वेचर आ रहा है वो सारा जो है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, आप जब प्लान में देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन मीनवाइल जब भी आप इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में जो आपको दिखेगा वो आपका वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. समझ में आया? अलाइनमेंट क्या है, आपके रोड का सेंटर लाइन है, ठीक है? रोड का सेंटर लाइन जहां से पास होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर, ठीक है? So these are the two types of the alignments. Now, if you want to talk about the traffic control, you should have to control this all the small units of a traffic, whether it is a bike, whether it is a car, whether it is a auto rickshaw, bus, truck, whatever it is, right? So you need to control by the signs, okay? Then we have a highway geometric design. If you are providing this kind of intersection, right? So you need to take care about the what angle should be there, right? Theta is there. What will be the circular radius of this curve, R? So when you are particularly talking about the dimensions, it comes under the geometry, right? So what will be the height of this pool? You can say, right, H.
So basically it is dealing with the angles and distances. Okay. So what will be the closing entry angle? What will be the exit angle? Okay. So that you are going to learn. Okay. In case of geometry design. Okay. But it is not up to the diploma level. If you go for the degree or master degree, you will definitely deal with this kind of things. Okay, but right now just remember geometric design is a basically the dimension point of view design. Okay, so what will be the angle, what will be the distance, what will be the radius of the curvature, what will be the height of the that bridge over there, right? So this thing we are going to learn further. You can see this is horizontal alignment, you can consider, because the central line, right? The central line of the road move like in a curvature manner, right? So this you can see, this is a horizontal alignment. Further, we need to take care about this kind of potholes. Okay, so how we are going to deal with that, all these potholes? Okay, so every time you need to take care about the pothole and maintenance point of view, right? In case of geometric design also. So how you are avoid this kind of potholes? Okay, the life of the roads can be 20 years. Okay, with a good maintenance practices. Okay, so you can now compare with the our roads. Okay, how much life our road have, you can easily measure. Okay, so that is comes under. Now the important thing is that before going for the highway classification, this is our new topic, you can say, of the unit number 1, highway classification. So generally the roads are classified into two categories. Number one is the urban roads, which are the roads in the urban areas. Okay, and second classification is, you can say, the non-urban roads, that means rural roads. So you can simply say that universally or generally roads are classified into the two categories. Number one is the urban road. Okay, so the road within the Rajkot city, you can consider the urban roads, because it has a urban property, right? Majority of its populations are dealing with the commercial activities, that is non-agriculture activities, right? Further, it can be, second part is, you can say, the rural roads. So this you need to write down in your notebook like this: highway classification. It's, I'm putting it in very short. First one, we have urban roads, UR. Second, we have NUR. You can say NUR is nothing but non-urban roads, or you can say rural road, RR. Okay, you need to write full form, huh? This short form for me only. Okay, so urban roads, you just make a chart over in your class note, right? That highway classified into two categories: urban road and non-urban roads, or you can simply say the rural road. Now we will refer the urban road and rural road. Okay, the words. So before that classification, let's have a quick overview of this thing, right? Have you observed this kind of things? मान लीजिए आप किसी रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आप ट्रैवल करते हो, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं? इसको किलोमीटर स्टोन बोलते हैं। ये जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ठीक है, इस शेप में, वो क्या है? किलोमीटर स्टोन। क्या आपको ये बताएगा कि राजकोट से मोरबी कितना दूर है ना? फर्दर ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आप वाइल यू आर ट्रैवलिंग कि इतना किलोमीटर दूर रह गया, इतना किलोमीटर दूर रह गया। इसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन भी देता है कि मान लीजिए आपके ये जो स्टोन है, ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करना आप, ठीक है, कि आपका जो स्टोन है उसके ऊपर ये जो है ना, इस टाइप का, उसको हम स्टोन केप कहते हैं। हम जैसे टोपी लगाते हैं, इसी टाइप का स्टोन ने भी टोपी पहनी हुई है, ठीक है, आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे कर्वेचर बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टोन केप, किलोमीटर स्टोन केप।
ये स्टोन ने भी टोपी पहनी हुई है, और वो टोपी जो पहनी है वो अलग अलग रंग की है, आप देख रहे हैं। तो उस टोपी के रंग के हिसाब से आप हाईवे को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो, कौन से रोड पे जा रहे हो। ठीक है, मोटा मोटा जो है आप क्लासिफिकेशन इस तरह से देख सकते हैं कि इट कैन बी डिफर अकॉर्डिंग टू द लोकल रीजन ऑल्सो। ठीक है, तो लोकल के हिसाब से वेराई भी करता है, लेकिन मोटा मोटा जो है जनरल क्या है, ये है कि उसने अगर पीले रंग की टोपी पहनी है, आप जब रोड पे ट्रैवल करते हो तब आपको किलोमीटर स्टोन पे येलो कलर का रंग आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो स्टोन कैप हैविंग ए येलो कलर, इट इज रिफर एज ए नेशनल हाईवे। तो जब भी आप नेशनल हाईवे पे मूव करते जाओगे, वहां पे आपको किलोमीटर स्टोन पे येलो कलर की टोपी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको ड्रॉ भी करना है अपने क्लास नोट में। ठीक है, सिंपल ड्रॉ कर लो। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल ऐसे करके आप ड्रॉ कर लो, किलोमीटर स्टोन नीचे लिख दो, और ये केब का जो है कलर लिख लो। येलो है तो वो है नेशनल हाईवे है, यू कैन से सिंपली एनएच, राइट। फर्दर अगर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है, तो वो स्टेट हाईवे होगा। ठीक है, तो हम ये भी सीखेंगे कि नेशनल हाईवे किसे कहेंगे, स्टेट हाईवे किसे कहेंगे, रूरल रोड किसे कहेंगे। ठीक है, तो आपको कलर कोड थोड़ा याद रखना है कि आप मोटा मोटा 2 कलर या 3 कलर याद रख सकते हैं कि जब भी आप नेशनल रोड पे मूव करोगे तब किलोमीटर स्टोन की केप का जो कलर है वो येलो होगा। जब भी आप रोड पे मूव करोगे और केप का कलर ग्रीन होगा, तब आपको स्टेट हाईवे में आप चल रहे हैं, स्टेट हाईवे। तब आप ऑब्जर्व करना, जब आप हमारे गेट के बाहर के जो रोड है, ठीक है, गेट के बाहर का जो रोड है वो स्टेट हाईवे है। तो उसके ऊपर आप मूव करोगे ना, तो जहां पे भी किलोमीटर स्टोन आएगा वहां पे ग्रीन कलर का जो है टॉप पहनी, ग्रीन कलर की टोपी जो है उन्होंने पहनी होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात एवरीबडी? किसी को कंफ्यूजन है यस सर। कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको ये नो सर, किलोमीटर क्लियर। स्टोन तो पता ही है। ओके, तो आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप ट्रैवलिंग करो तब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैं कौन से हाईवे पे जा रहा हूँ। ठीक है, नेशनल हाईवे पे जा रहा हूँ, स्टेट हाईवे पे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सिटी रोड है या डिस्ट्रिक्ट रोड है जो जिले के अंदर होता है, मान लीजिए आप राजकोट डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट रोड पे जा रहे होंगे, तब उसका कलर यू कैन से द ब्लैक और ब्लूइश होगा, यू कैन से, राइट। ब्लैक समवेयर ब्राउन इज देयर, बट मेजॉरिटी इट इज अ ब्लैक वन, राइट। सो that city or district road we will consider as a black cap, having a black cap, right. And then the rural road you will simplified say that reddish color, you can say, right, red color, or you can say the saffron color, kesri, same कहते हैं. So these are the general information, facts and figure about the national highway classification, right? Sorry, highway classification. So now let us see in the detail, right? तो जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, धमनी, सीरा वगैरह होता है, ठीक है, वैसे ही हमारे पूरे कंट्री में हमने जो रोड बनाया है, इट इज एक्ट लाइक ए, यू कैन से द धमनी एंड सीरा ऑफ अवर कंट्री। आप क्या कर सकते हो, अपने बॉडी में जो भी हमारे धमनी और सीरा है उसमें जो ब्लड है, ठीक है, वो भी मूव मूव कर रहा है, वो फ्लो हो रहा है। सिमिलर मैनर आप अगर कंपेयर करो तो कोई भी कंट्री है उसकी धमनी और सीरा जो है वो उनके रोड नेटवर्क है, ठीक है। तो वो रोड नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, मूवमेंट रॉ मटेरियल की ज्यादा होगी और इफेक्टिवली होगी। उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बूस्ट होगी, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द जीडीपी, right, gross domestic product, you can say. So GDP is a important factor which is directly connected with the road network. So just remember one thing, हमारे बॉडी में किस टाइप की होती है, आपको इमेज दिखा रहा हूं मैं, वेसल्स एंड वाइन्स आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा, आपको कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये दिखाता हूं।
now we are dealing with the biology. So biology and you can say biology and our highway engineering both are similar. You can compare both things easily. Are you getting my point or not? जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, उसमें क्या है कि I think it is visible or not? Whiteboard. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मैंने क्या किया, सिंपल है कि दो हम इमेज ले लेते हैं. नाउ हाउ आई एम कनेक्टिंग, और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है. तो आपको ये समझना होगा कि आप जो है आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है. ठीक है, लेट अस टेक ए फुल इमेज सो यू विल हैव ए आइडिया. ठीक है, ओके, सो आई एम टेकिंग दिस इमेज. आई होप आई एम टेकिंग दिस इमेज. ओके, so why I'm taking this image, because you will have a clear cut idea, right? So I have a biology subject, you can say. Okay, so in that you can say here is our heart. आपको ये दिख रहा है, मैंने कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. लेट अस मेक इट ग्रीन. ओके, सो आपको ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इज दिस इज अवर हार्ट. तो जिस तरह से हमारी बॉडी में हार्ट होता है, इन सिमिलर मैनर किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का एक हार्ट होता है जहां पे मेजर एक्टिविटीज होती है. ठीक है, मेजर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है. तो अब जो मैं आपको एक थोड़ा सा एक और पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूं. ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके ऊपर ही आप अब आप मुझे बताइए, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं कि अब आप मुझे बताइए, अब कुछ सिमिलर दिख रहा है इसमें? इस तीनों इमेज में आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है? यस और नो? वी विल एक्सप्लेन. आपको कुछ दिख रहा है, सिमिलरिटी दिख रही है तीनों इमेज में? एनीबडी? वी विल ट्राई. हाँ सर, लाइनिंग दिख रहा है बहुत सारा. સર બોડીમાં જેમ વેન્સ છે એવી જ રીતે આમાં પણ ઇન્ટરકનેક્ટેડ બધા રોડ્સ ને હાઈવેઝ ને છે. ओके, सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? कि आप बोल रहे हो कि सर जैसे हमारे शरीर में वेन्स है, ठीक है, सीरास है, धमनीज है, वैसे ही इंडिया का मैप अगर हम लेते हैं तो उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ आपको दिख रहा है. ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर में दिल है, वैसे हमारे कंट्री का दिल कहाँ पे है? दिल्ली में है. ठीक है, सो यू कैन सिंपली पुट ए सर्कल ओवर देयर. ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब जो है आपको क्या, आपका काम क्या रहेगा कि जैसे बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को बॉटम तक पहुंचाता है, यानी कि टो तक पहुंचाता है कि नहीं? अलग अलग पोर्शन से, है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक, है कि नहीं? यस और नो? राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? યસ સર. ठीक है, तो जैसे हमारा हार्ट ब्लड यानी कि आप कंपेयर कर लो व्हीकल से. ठीक है, तो व्हीकल भी तो एक फ्लो है. व्हीकल अगर मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी एक, यू कैन कंसीडर इट इज ए ब्लड सेल, राइट? तो वो भी मूव हो रहा है और यहाँ पे भी मूव हो रहा है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो हमारे टो तक, टो यानी कि ये जो अंगूठा होता है हमारे यहाँ पे बॉटम तक, ठीक है, वहां तक वो जो है फ्लूइड पहुंचाता है, जो ये वहां तक ब्लड पहुंचाता है. ठीक है, the problem is that with our road network is when we are traveling any
any vehicle from this, it is not connected with the last point, you can say, right? तो ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है यहाँ पे, इट इज अ वेरी लार्ज एरिया। आपको समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए। दिस एरिया इज वेरी लार्ज एरिया, राइट? So within this green portion, you might have not a proper road network, ठीक है? तो आपका काम ये रहेगा कि हमारे बॉडी में जैसे हार्ट जो हमारा है वो ब्लड जो है सभी जगह पे पहुंचाता है, इन सिमिलर मैनर नॉट इन द अर्बन एरिया, ठीक है? अर्बन एरिया, आपको रूरल एरिया में भी उसी टाइप का रोड नेटवर्क चाहिए, ठीक है? सो आपको क्या करना है कि ये हमारी बॉडी जो है वो आइडियल है, ठीक है? यू कैन कंसीडर एज आइडियल आइडियल नेटवर्क, आइडियल रोड नेटवर्क। और जो है फिजिकली है, हमें ये फिजिकल रोड नेटवर्क आइडियल की ओर ले जाना है। आपको समझ में आ रहा है बात? यस और नो? ओके। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि हमारा रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए कि हमारे बॉडी की जैसा होना चाहिए, ठीक है? ये आपको समझ में आ गई बात? अब जो है मैं आपको क्लासिफिकेशन की ओर ले जाता हूं। तो जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, ओके, वैसे ही हर एक राज्य का एक अपना हार्ट होता है जहां पे मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। जैसे कि मैं आपको इंडिया लेवल पे बताऊं तो इंडिया लेवल पे हमारे 4 दिल है, ठीक है? आप कह सकते हैं। एक तो दिल्ली हो गया, एक मुंबई हो गया, नीचे की साइड जाओ तो बेंगलोर और हैदराबाद, और लेफ्ट यू कैन से द राइट हैंड साइड टुवर्ड द ईस्ट साइड वी हैव ए वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो उस 4 दिलों को हमें पहले जोड़ना होगा, ठीक है? और उसके बाद हर राज्य का अपना एक दिल है, ठीक है? उसको उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि गुजरात का है तो अहमदाबाद गांधीनगर ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, है? वैसे आप बिहार में ले सकते हैं, ठीक है? पटना आप ले सकते हैं, यू कैन से, राइट? जैसे आंध्र प्रदेश में आप हैदराबाद है, तेलंगाना पॉइंट ऑफ व्यू, आप हैदराबाद अभी तो 2 पोर्शन हो गया, ठीक है? तेलंगाना और हैदराबाद। बट हैदराबाद जब आंध्र प्रदेश में था तब हैदराबाद इट इज द हार्ट ऑफ दैट सिटी। तो आपको काम यह रहेगा एज ए रोड नेटवर्क, एज ए इंजीनियर, आपको उन सभी दिलों को कनेक्ट करना है अच्छे से, ठीक है? ठीक है। सो दैट इज अवर मेन कंसर्न आपका। तो सिमिलरली आपको मैं अगर एक और मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है? तो जैसे हमारा रोड नेटवर्क है, ठीक है? उसको हमें आइडियल बनाना है, ठीक है? हमारे बॉडी में जैसे है वैसे टाइप का बनाना है। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो आपको ये चीज एक याद रखिए कि आप जब भी घर से निकलते हैं, ओके, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम, ठीक है, तो आपके लोकल स्ट्रीट आएगी, है ना? सबसे पहले जिस सड़क की विड्थ कम होगी वो आपको आएगी, फिर वो सड़क जो है ना किसी चौराहे पे मिलेगी। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर वो बड़ी सड़क जो है, आप जब घर से निकले तब छोटी सड़क थी, है ना? क्योंकि आपकी जो गली है, आपकी जो स्ट्रीट है वो छोटी है, उसकी विड्थ कम है। अब जब आप वो छोटी स्ट्रीट कहाँ पे मिलती होगी? एक चौराहे पे, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन पे। तो उस रोड की विड्थ ज्यादा होगी। सिमिलर मैनर अगर आप फर्दर वो उस रोड पे जा रहे हो तो वहां पे उससे भी बड़ी सड़क उसको मिल रही होगी। यस और नो? है कि नहीं? आपको यस समझ में सर। आ रही है बात? फिर वो सड़क जो है, बड़ी सड़क जो है, वो वापस से किसी एक और बड़ी सड़क से मिल रही होगी। जैसे मान लीजिए ये वाली, यस और नो? तो आप घर से निकले और यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, या फिर आपका ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, राइट? सो अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपको घर से निकलना है, ठीक है, तो आप क्या होगा कि आप छोटे रोड में से बड़े रोड में जाएंगे पहले, लेकिन इसकी विड्थ आप देखिए कम है। उसके बाद ज्यादा विड्थ वाली रोड कनेक्ट करेंगे आप, है कि नहीं? फिर यहां आए, यहां से आप राइट मुड़े और उसकी विड्थ आप देखिए, ठीक है?
और फिर यहां से आप यहां पे आ गए। तो जैसे जैसे आप उसको ए बी सी डी दे दीजिए, तो ए जो है सबसे छोटी है विड्थ, बी उससे बड़ी, सी उससे बड़ी, और डी, और यू कैन कंसीडर ई ऑल्सो समटाइम्स। तो ए बी सी डी क्या है, रोड की विड्थ है। तो जैसे आपको घर से एमयू तक जाना है, तो आप क्या करेंगे, हर बार जो है बड़े 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 रास्ते में जाते जाएंगे, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी से घर जाएंगे तब आप क्या करेंगे, बड़े रास्तों में से छोटे 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 रास्तों में जाते जाएंगे। सो दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, राइट। कि आप बड़ा जो है उसको नेशनल हाईवे कह दीजिए, उससे छोटा है जो उसको स्टेट हाईवे कह दीजिए, स्टेट हाईवे से जो छोटा है विड्थ में उसको आप डिस्ट्रिक्ट रोड कह दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट रोड से जो छोटा है उसको रूरल रोड कह दीजिए। समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है ज्यादा, या फिर रूरल रोड इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए? रूरल रोड। सर सर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे। जस्ट थिंक वंस, थिंक अबाउट वंस अगेन। यू नीड टू डील विद द मेजोरिटी ऑफ योर मास। आप बोल रहे हैं नेशनल हाईवे, तो मान लीजिए मैं हटा देता हूं, चलो। अब आप घर से निकलने के लिए आपके पास रास्ता नहीं बचेगा अगर रूरल रोड नहीं है तो, प्रॉपर रूरल नेटवर्क नहीं है तो। तब आपका जो सामान है, आपका जो मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट है, आपका जो पीपल का मूवमेंट है, वो नहीं हो पाएगा क्लियर कट, राइट। सो मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्शन जो है हमने प्रोवाइड किया है। आपको फिलहाल ये फिगर याद रखना है, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में इसी की ही बात करेंगे, ठीक है, कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो आप फिलहाल ये याद रखिए कि अगर कनेक्टिविटी आपको ज्यादा चाहिए तो जितने ज्यादा रूरल नेटवर्क्स बनेंगे, जितना ये कॉमन मैन यहाँ पे रोड पे आ पाएगा मेजर रोड पे, उतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, हम ये सीखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको ये केप वाला याद रखना है। और नेक्स्ट सेशन में क्या करके आना है आपको कि ये सारी जो बोथ स्लाइड्स है ना, ये ई कंटेंट में अवेलेबल है, ठीक है, वो आपको पढ़ के आना है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सभी को पढ़ के आना है, ये दो स्लाइड है। और ये चीज जो है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम कंपैरिजन कहीं पे भी कर सकते हैं, ये वाला जो है, ठीक है। ये जो इमेज आपको हमेशा याद रखनी है कि हमें कैसा रोड चाहिए, कि हमें हमारे बॉडी जैसा रोड चाहिए, अंदर। जैसे हमारा ब्लड जो स्मूथली कैसे निकलता है ना, रुक रुक के तो आता नहीं है। आपको यहीं पे भी, यहाँ पे कुछ लगे हाथ वाथ में, ठीक है, तो कैसे ब्लड, इट 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 कम लाइक स्मूथली, राइट, स्मूथली बाहर आता है। तो आप रोड में ऐसा करोगे ना तो स्मूथली व्हीकल आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं रुक रुक के चल रहा है, ट्रैफिक कंजेशन है, हमने गलत डिजाइन दे दिया है, हमने गलत तरीके से चला रहे हैं खुद को, जो व्हीकल है उनको। तो दैट इज द इश्यू। कहीं पे भी आपको स्ट्रेच होगा, कहीं पे भी आपको लगेगा, आप जो है कोई भी नुकीली चीज अपने बॉडी में घुसाए तो वहां से तुरंत जो है वो ब्लड बाहर आ जाएगा। हालांकि रोड नेटवर्क में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं पे भी एक्शन रुक रुक के चल रहा है, ठीक है, तो दैट इज द इश्यू। ओके, सो आपको ये रीड करके आना है, और अभी आपके पास टाइम है, आप ये रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पे सेशन यहाँ तक रखते हैं। आप रोल नंबर फटाफट लिख दीजिए, और आप लीव कर सकते हैं क्विकली। ओके, रोल नंबर लिखिए और आप फटाफट लीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई हैव अनदर ऑफलाइन सेशन, राइट, सो आई नीड टू रीच देयर आल्सो। सो quickly you can left the session and just refer that ppts quickly.
Quickly, left the meeting quickly. Write down your roll number and left the meeting. Left the meeting, please.